السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ لوگوں کا ٹیچر راشد عباس لرن اردو وتھ پروفیسر راشد عباس کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پہلے کی طرح سیکنڈ ایئر کے طلباء کے لیے رموز اوقاف کا لیسن لے کر آئے ہیں کہ اس گرامر کے حصے کو ہم نے کس طریقے سے تیار کرنا ہے، ان علامتوں کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ چلے آئے ہم دیکھتے ہیں کہ رموز اوقاف کیا ہے۔ رموز اوقاف رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی علامت، نشانی، اشارہ یا کنایہ وغیرہ کے ہیں۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی وقفہ کرنا، رکنا یا ٹھہرنا۔ رموز اوقاف کا مطلب ہوا کہ علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے کس کس جگہ پر ہم نے کتنی کتنی دیر رکنا ہے۔ جب ہم ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک تحریر کو دوسری تحریر سے الگ کرنے کے لیے علامتیں استعمال کرتے ہیں تو اس تحریر کے اندر، اس جملے کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے اور قاری یعنی کہ پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے الفاظ پر میں نے کتنی دیر رکنا ہے۔ یہاں ہم نے علامتیں جو ہیں وہ اردو میں لکھ دی ہیں، یہاں پہ ان کی شکل کو واضح کر دیا ہے اور ساتھ ہم نے انگریزی نام بھی لکھ دیے ہیں۔ اس سال جو قواعد و انشاء نئی مارکیٹ میں آئی ہے اس کے اندر انگلش کے حروف یعنی کہ نام بھی درج ہیں۔ پہلے ہماری ٹیکسٹ بک کے اندر انگریزی الفاظ نہیں تھے، اس کا اس سال اضافہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی MCQs آ جائیں۔ سکتہ اس کا دوسرا نام وقف خفیف ہے اور اس کی علامت جو ہے وہ الٹا واو ہے، انگلش میں اسے کوما کہتے ہیں۔ وقفہ یا نصف وقف، اس کے بھی دو نام ہیں، الٹا واو اور نیچے آپ نے فل سٹاپ کی طرح ڈاٹ لگانا ہے اور اسے ہم سیمی کولن کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ رابطہ یا وقف لازم، وقف لازم کی علامت یعنی کہ کولن انگلش میں اور دو نقطوں کو گلائی کے اندر یہاں پر لگانا ہوتا ہے۔ تفصیلیہ، تفصیلیہ میں رابطے کی طرح دو نقطوں کو گلائی میں اور ساتھ جو ہے وہ ڈیش یعنی کہ فل سٹاپ سے ذرا بڑی علامت لگائی جاتی ہے جسے کولن اینڈ ڈیش کہا جاتا ہے۔ ختمہ یا وقف مطلق، ختمہ جو ہے وہ بات ختم ہونے پہ یعنی کہ بیانیہ حد تک وہاں پہ یہ علامت لگتی ہے جو فل سٹاپ سے ذرا بڑی ہوتی ہے، اسے فل سٹاپ کہتے ہیں۔ سوالیہ یا استفہامیہ، سوالیہ نشان کا استعمال، سائن آف انٹروگیشن، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سوالیہ نشان جو ہے وہ علامت سامنے ہے۔ ندائیہ یا فجائیہ، یہاں پہ ندائیہ کی علامت اور پھر کیا ہے انگلش میں اس کا نام بھی آپ کے سامنے ہے۔ واوین، اس کی علامت اور پھر کیا ہے انورٹڈ کوماز، اس کی بھی علامت اور نام آپ کے سامنے ہے۔ کوسین، خطوط وحدانی، بریکٹ بھی کہتے ہیں، بریکٹس انگلش میں لکھا گیا ہے۔ خط یعنی کہ ڈیش، جو دو بڑے ختمہ کو ملانے سے ایک تحریر بنتی ہے۔ اب ہم ان کی وضاحت میں جائیں گے کہ ہمیں علامتیں بھی یاد ہو گئی ہیں، ان کے نام بھی یاد ہو گئے ہیں اور انگلش میں بھی نام یاد ہو گئی ہیں، تو اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ سکتہ، یہ علامت سب سے کم توقف یعنی کہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے، جسے ہم کہہ لیں کہ مختصر ٹھہراؤ یا کم سے کم ٹھہراؤ۔ مثلا دو اسموں کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان ایک سانس رکنے کے لیے جو علامت ہم استعمال کرتے ہیں اسے سکتہ کہتے ہیں۔ مثلا اسلم، اکبر اور علی بھائی ہیں،
यहाँ पे असलम और अकबर को अलग करने के लिए हमने सक्ता की अलामत लगाई, यानी एक सांस के लिए हम रुके। वक्फा, ये अलामत जुमले में सक्ता से जरा ज्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ अल्फाज की दो या दो से ज्यादा तराकीब के दरमियान वक्फे की अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन आलिया और नाजिया, यहाँ पे वक्फे की अलामत राशिदा और शाजिया दो अलग अलग टोलियों की हैं। यहाँ पे दो नाम फिर दो नाम, इन दोनों के दरमियान और कलम से इन दोनों नामों दो टोलियों के दरमियान जो चीज हमें मिला रही है वो वक्फा की अलामत है। राबता, ये अलामत वक्फा से जरा ज्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। किसी के कौल, फरमान, हवाला, कहावत या पहले और बाद, यानी कि जुमला, जैसे हम कहते हैं सबक का उन्वान, उसके बाद ये अलामत होगी और फिर सबक का नाम लिखा जाता है। यानी कि पहले और बाद के जुमलों के दरमियान रब्त को पैदा करने या कायम करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे हम राबता कहते हैं। मसलन कायदे आजम ने फरमाया, यहाँ पे राबता की अलामत है काम, काम और काम। इस मिसाल के अंदर हम देखते हैं कि काम और काम के दरमियान सकता भी है और ऊपर वाह वैन भी है, यानी कि किसी के कौल को हमने नकल किया है। ऐसे ही कई मिसालों में इकट्ठी दो से तीन अलामतें भी इस्तेमाल हो जाती हैं। तफसीलिया, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि किसी चीज की तफसील करना, खोलकर बयान करना, वजाहत करना वगैरह। इस अलामत के इस्तेमाल से पहले हस्बे ज़ाइल या मुदर्रज ज़ाइल का इस्तेमाल होता है। मसलन पाकिस्तान की मुदर्रज ज़ाइल अजनास हैं, यहाँ ये अलामत लगेगी। आगे जो है हम देखते हैं कि गंदम, कपास, मकई वगैरह। खत्मा, पांचवी अलामत पर हम चले आए हैं। खत्मा जो है, खत्मा की अलामत इंग्लिश फुल स्टॉप से जरा बड़ी होती है। इंग्लिश फुल स्टॉप से बड़े होने के बाद ये अलामत एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती है और बयानिया जुमले के आखिर में इस्तेमाल होती है। यानी कि बात के खत्म हो जाने पर या एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए जो अलामत हम इस्तेमाल करते हैं वो खत्मा की है। इस पर मुकम्मल ठहराव होता है, यानी कि भरपूर ठहराव। ये दुनिया फानी है, इसकी मिसाल है ये बात खत्म हो गई, यहाँ पे कारी कितने सांस भी लेना चाहे ले सकता है। सफालिया या इस्तफामिया, ये अलामत किसी को सवाल करने या इस्तफसार करने के लिए जो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं उसके आखिर में लगाई जाती है। मसलन आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है वगैरह। ऐसे सवाल करने के बाद जो अलामत लगाई जाती है वहां पर सवालिया अलामत लगाई जाएगी। निदाइया और फिजाइया, इस्तजाबिया, ये तीन अलामतों के नाम हैं, लेकिन तीन नामों की अलामत एक ही है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है तलबा को कि कौन सी अलामत, यानी कि नदाइया का इस्तेमाल हुआ है, फिजाइया का इस्तेमाल हुआ है या इस्तजाबिया का हुआ है। नदाइया, ये अलामत लफ्ज निदा का मुखफ़फ़ है, यानी किसी को पुकारने के लिए, मुखातब करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो क्या है, नदाइया। यानी कि मसलन ए भाई, उसके बाद नदाइया की अलामत जरा बात सुनो, अजीज तुलबा मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए। अजीज तुलबा के बाद ये अलामत इस्तेमाल होगी। फुजाइया, जब तहरीर और तकरीर में गुस्सा, हकारत, तमन्ना, अदब, खौफ और जोश को जाहिर करना हो तो ये अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन बस भाई बस, बहुत हो चुका। या फिर हम कहते हैं उफ कितनी गर्मी है, हम मैच जीत गए। यानी कि ऐसे अल्फाज जो बिला अख्तियार इंसान की जुबान से अदा हो जाते हैं और वहां पर हमने फुजाइया का इस्तेमाल करना है। यानी कि दुख और खुशी में फुजाइया, तमन्ना और हैरत में इस्तजाबिया। वावैन,
इस अलामत को किसी का कौल मनोअन यानी कि हूबहू नकल करना, इक्तबास का इंदराज करना यानी कि बात को वैसे का वैसे लिखना हो तो वहाँ पे वह वैन की अलामत इस्तेमाल होती है। पुरानी आयात अहादीस जब हम तशरीह के अंदर लिखते हैं तो वहाँ पर जब उनका तर्जमा लिखते हैं तो वह वावैन की सूरत में लिखते हैं। मसलन कायद का फरमान, ये अलामत पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं कि काम काम और काम, इस काम काम के दरमियान हम क्या हैं वावैन की अलामत इस्तेमाल कर चुके हैं। कोसेन जिसे हम ब्रैकेट भी कहते हैं, खतूत वहदानी भी कहते हैं, ऐसे अल्फाज जो जुमले मुतरज़ा में लिखे जाएं, अगर वो अल्फाज जो है अबारत से हज़फ कर दिए जाएं यानी कि निकाल दिए जाएं तो अबारत पर कोई भी असर ना पड़े तो वो अल्फाज हम किसमें कोसैन में लिखेंगे। मसलन इल्लामा इकबाल कौमी शायर हैं, बात खत्म हुई। अगर हम कहते हैं कि इल्लामा इकबाल अल्लाह जन्नत में जगह दे कौमी शायर हैं, ये अल्फाज अगर हम लिख देंगे तो ठीक है, अगर निकाल भी देंगे तो फिक्रे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही खत है, अंग्रेजी में इस अलामत को डैश कहते हैं, इसका इस्तेमाल कोसैन की तरह है यानी कि जुमले मुतरदा को रवा तहरीर से अलग करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे हम खत कहते हैं। वो अली स्कूल नहीं गया, अगर जुमले मुतरदा की तरह इस्तेमाल करें तो अली को निकाल दें, वो स्कूल नहीं गया, बात पूरी है। अगर दो जुमलों को रवा को अलग अलग करना है, मैं बीमार हूँ, यहाँ पे खत की अलामत आपसे मिलना भी जरूरी था तो यहाँ खत की अलामत इस्तेमाल होगी। अजीज तुलबा, आप लोग जो हैं किसी से बात करते हैं, अगर आप इन अलामतों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बात के अंदर पहले से ज्यादा निखार पैदा हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा और दूसरे लोगों से शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।